I'm the placement officer for Delhi and Rajasthan with Quest, and I've been with Quest for the last 7 months, and it has been a great experience. And especially because it's make opportunity. What I would say is that I get that chance to meet all of you young people. आपके ITIs में आके interacting with you and then helping you and making you understand the importance of how economically you could get involved, get a job, get economically active, and how important that is. So that is about me. And just to let you know, I've got approximately 12 years of experience with both multinational companies and development sector ka hai. So a lot of interviewings in my career. I've taken a lot of interviews, and I'll be giving you some insights that from the perspective of interviewee, जब आप किसी के पास interview देने को जाते हैं, तो what are the things or the qualities, or you could even say the skills that that particular person would look into. So we're going to be discussing all these, and today's session, as I said, is all about how to increase your chances of getting selected in that interview. So interview in itself is an entire process, and interview, देखिए सुनने में बड़ा easy सा लगता है. It's a very small word where you just say I'm going for an interview, or I've been called for an interview. So there's a lot that goes before the interview and during the interview, the day of interview, I would say. Interview एक वो particular 15 to 20 minutes होते हैं जिसमें आप बेसिकली आप अपने स्किल्स के बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में और अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में जो इंटरव्यू है उसको आप बताते हैं. सो इट्स बेसिकली what all your skills, your qualifications, आपको 15 to 20 minutes में आप basically you're trying to inform the other person sitting in front of you कि what qualities you have. जैसे मैंने बताया, so 15 to 20 minutes जिसमें आपने अपना education, you're gonna tell him that why are you right for this particular job. So interview करने का मकसद मेन ये है कि आप उनको ये समझा सको कि how do your skills match to the job description, जो job के लिए आप apply कर रहे हैं उसके लिए how do you match that, why are you the correct person, and why is it that you are the suitable candidate for that particular job. So almost all of us are saying that it's a communication process that happens between two individuals. दो जने बात करते हैं एक दूसरे के बारे में, मतलब बेसिकली एम्प्लॉयर जो है और इंटरव्यूअर जो है वो कैंडिडेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, ठीक है, उसके स्किल समझना चाहता है, वो जिस प्रोफाइल के लिए उसने अप्लाई किया है, whether he or she is the right candidate, that's another thing they would like to know. And as I said, what makes you different from the crowd. आप suppose करो एक particular opportunity निकलती है, so it's not only you who is applying for that particular job. So it's basically कि आप और सारे crowd से अपने आप को differentiate कैसे करते हो, ठीक है. Once you pass out through your ITI, the next important step is to get a job, ठीक है. आपने जो भी ये qualifications लिए हैं एंड आप आगे बढ़ना जा रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड दैट द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि आप उन सारे स्किल्स को एक जॉब में कैसे आप यू गेट अ जॉब. दैट इज द एंडिंग ऑफ, नॉट अ एंडिंग, बट इट्स अ वे ऑफ आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस को आप कैसे यूटिलाइज करें इन अ गुड वे. सो अ जॉब इज बेसिकली एन आउटकम of how you go ahead with that. So I've divided that into two simple parts. The first part is कि certain activities that or preparations that we do before the interview, ठीक है. So these would be those particular activities जो कि हम interview day से पहले करना चाहेंगे and which are very important. And मैंने जैसे पहले भी कहा कि these preparations would finally make your chances go up in getting selected. So it's really important that we pay focus to these. एंड सेकेंड हो गई, एक तो होगी प्रिपरेशंस जो कि इंटरव्यू से पहले हम करते हैं, देन द अदर थिंग वुड बी द प्रिपरेशंस दैट वी डू ऑन दैट डे. नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक की प्रिपरेशंस इंटरव्यू से पहले कौन सी हैं. सो I've put in 4 important things because जब मैं भी employer, मतलब when I was sitting in that seat और जब मैं interviews लेता था, तो there were certain things I would look into in a candidate कि क्या चीजें उस candidate के अंदर हों. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, पीपल हु हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग, आप रूम के अंदर जब आते हैं, द वे यू ग्रीट द पर्सन, द इंटरव्यूअर, and you take a seat and say the initial 5 minutes में ही the interviewer has a rough idea of if he's going to select you or not. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि body language, your communication skills, your confidence level is a very important aspect. And as soon as you enter
that room, or maybe मैं room तो अब एक चीज है, अब see everyone has CCTV cameras and all that. तो I would say कि you should be at your best as soon as you enter that particular place जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए गए हैं. So now coming on to the part where I said कि before the interview हम किन चीजों का फोकस करें, तो one important thing is कि always do a background search for the organization you're going for. तो सपोज करो कि अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक आई गॉट एन एडवर्टाइजमेंट, उसका मैंने कहीं पे पढ़ा, चाहे वो गूगल किया, एंड नाउ आई वुड लाइक टू गो फॉर एन इंटरव्यू. सपोज उन्होंने मेरे को सेलेक्ट भी कर दिया, सेंट माय सीवी. नाउ इट्स नॉट दैट कि उन्होंने आपका सीवी पढ़ा, आपको सेलेक्ट कर दिया तो यू नॉट सेलेक्टेड. वो सिर्फ एक इनिशियल स्टेप है कि उनको आपके कहीं ना कहीं स्किल्स या आपके क्वालिफिकेशंस उस जॉब के इक्विवेलेंट लगे, सो दे हैव given that opportunity where you come in for a personal interview. Now, why I'm saying is कि organization के बारे में जानना जरूरी है is that because first thing is that जब आप इंटरव्यू देंगे and if they say why do you want, suppose a question comes up to you कि आप इस organization को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, so you should have some relevant answers जो कि आप अपने एक्सपीरियंस, अपने क्वालिफिकेशंस को किस तरीके से उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर सके. So that is really important कि you do that. And when I say background information आप ढूंढे organization के बारे में, तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि it needs to be the highlighted information, like organization कब से है, कब से वो लोग काम कर रहे हैं, and apart from that कब से established है, number of employees, ये सब website में information मिलती है. And one good thing जो एक practice मैं भी करता था, वो to go to that section, और हर website में they have a section where they highlight their achievements. ठीक है, या उन्होंने जो भी awards जीते हैं, achievements attain किए हैं. So it's good कि when they say कि why do you think you're the perfect candidate for our organization, so you could also reflect your qualifications and education qualifications to that, and उनको you could this would be a way of they would understand कि ये जो हमारे सामने candidate है, she or he or she has not only just read the JD, but वो organization के बारे में पढ़ के आई है. This seriously shows the seriousness of that particular candidates towards the job. So पहला point, as I said, is really important, is to always do a background search. Google पे आप उसके बारे में पढ़िए, थोड़ा समझिए उस organization के बारे में. Okay, now next thing what I would say is that always, इसको कई लोग बड़े lightly लेते हैं, but this would be very important for you, is to always review your own resume. जो आपका resume है, I know हम खुद बनाते हैं, कई बार क्या होता है कि we go to cyber cafes and we get it made, तो वो इंसान उस तरीके से नहीं आता है कि maybe how you would like to do that. ठीक है, so it's really important that कि जो आपका खुद का resume है, you should be well aware of what you've done. ठीक है, उसमें सबसे important तो ये है कि देखिए, इंटरव्यू में सेलेक्ट होना इज वन थिंग, बट अगर आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट हो रहा है और आपके सीवी में स्पेलिंग मिस्टेक है, सो दैट इज टोटल नो नो. तो व्हाट वी नीड टू डू इज की स्पेल चेक, आप क्रॉस चेक खुद पढ़िए, 2-3 बार उसको आप खुद देखिए. वी हैव क्वेस्ट फैसिलिटेटर्स जो आपसे टच में रहते हैं, सो यू कुड गेट इन टच विद देम. ठीक है, मेक श्योर दैट दैट प्रूफ रीडिंग इज डन बाय नॉट ओनली यू, बट और लोग भी उसको देखें. इफ देयर इज एनी सजेशंस और थिंग्स दैट दे टेल यू, यू कुड आल्सो इनकॉर्पोरेट दैट. एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीक्वेंस जो है, वो सीक्वेंस आपकी सही रहनी चाहिए. सीक्वेंस इन द सेंस योर हायर एजुकेशन शुड और योर लास्ट क्वालिफिकेशन शुड कम फर्स्ट एंड देन इट शुड गो डाउनवर्ड्स. तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इट शुड नॉट बी कि योर प्रीवियस एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन शुड कम ऑन टॉप. सो उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको वैसे करें. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सीवी में कुछ अपने आप के बारे में हाईलाइट करते हैं, सपोज आई वाज द लीडर ऑफ चैरिटेबल ग्रुप और आई डिड समथिंग विद सम, तो इट शुड बी कि आप ये सीवी में बनाते टाइम हम डाल दें, ये ना उसको आप एक बार पढ़िए. बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन कई बार इंटरव्यूज के बीच में ये होता है कि दे वो जस्ट लुक इनटू योर सीवी एंड से कि ओ सो यू आर अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इन योर आईटीआई, तो टेल मी मोर अबाउट इट. तो उस टाइम पे इफ वी आर नॉट थॉरो विद आवर सीवी, हम थोड़ा सा ब्लैंक हो जाएंगे कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी थॉरोली गो थ्रू आवर सीवी एंड उसको हम स्पेलिंग्स हो गए, सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक चीज और है, रेलेवेंस टू जेडी. आपका सीवी आपके पास है, आपने सपोज करो एक कोपा का स्टूडेंट है, कोपा का स्टूडेंट एक बैकएंड की जॉब आई, सो यू शुड आइडेंटिफाई दोज की पॉइंट्स जहां पे आप रिलेट कर सकते हैं कि मतलब
लाइक सपोज I've got a speed of 40 words per minute. अब जब आप इंटरव्यू में गए एंड दे से कि ओके व्हाई डू यू फाइंड योरसेल्फ suitable for this particular job, so you could say कि sir, apart from the other qualities, आपके जेडी में मैंने ये पढ़ा कि उसमें you require a person with 35 words per minute, whereas my speed is 40, with the level of accuracy and all that. So obviously that would make you stand different. So इसलिए CV, अपने CV को पढ़ना भी बहुत important है. Now, the third thing which I would say is to prepare for standard questions. So, जिस तरीके से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मतलब हमें खुद पता होता है, एक आइडिया होता है कि हमारे को क्या क्या चीजें, तो उन चीजों को आप प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस कुड बी कि आप क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लीजिए. गूगल अगर आप यूज करते हैं, सभी आई एम श्योर वी यूज गूगल, but what we could do is that we could use Google in a proper way, try to identify those key questions that are normally asked in an interview. देखिए की क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, जैसे सिंपली दे विल आस्क यू व्हाई डू यू फाइंड योरसेल्फ फिट फॉर द जॉब. ठीक है, व्हाई शुड वी हायर यू, जिसमें वो देखना चाहते हैं कि भैया हम आप ही को क्यों हायर करें. अदर थिंग्स कुड बी व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, तो दे वुड लाइक टू नो कि आपको उनकी ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी चीज ऐसी अच्छी लगी कि यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. सो मेक श्योर दैट हम जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस व्हेन वी ऑल ऑफ अ सडन हमें फेस करना पड़ जाए, तो इट माइट बी that we get anxious of it and ढंग से जवाब ना दे पाए. But if we do like friends हैं आज की डेट में, सी क्वारंटीन के चक्कर में we all are sitting at home, so what you could do is that you could have mock interviews among your friends. अपने 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में जस्ट let them ring you or you ring them up, और उनसे आप इंटरव्यू के टाइप में क्वेश्चंस पूछिए. सो इन अ वे जो ये टाइम हमें मिल रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जिसको आप अपने आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. प्रैक्टिसिंग इंटरव्यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अ लॉट ऑफ पीपल से इज दैट वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे. तो वो बेसिकली आपसे पूछते हैं कि आप अपने सीवी के थ्रू में बताइए कि इन्फॉर्मेशन. तो उस टाइम आप सीवी नहीं देखेंगे, इट इज बेसिकली यू स्टार्ट ऑफ विद योर इंट्रोडक्शन, व्हाट क्वालिफिकेशंस यू हैव डन, व्हाट एक्सपीरियंसेस यू हैव, what are your key मतलब your UP unique selling points, what are you great at. So it's important कि ये questions का आप एक तरीके से recap और आपस में इनकी mock interviews के तरीके से आप practice करें. Things we had discussed, one was हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ के जाएं, थोड़ा होमवर्क करके जाएं. सेकेंड थिंग वाज ऑलवेज रिव्यू योर ओन रिज्यूमे. जो आप अपना खुद का सीवी है, उसको रिज्यूमे को ढंग से कहाँ पे आपने क्या इन्फॉर्मेशन डाली, यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दैट. थर्ड थिंग वुड बी प्रिपेयर फॉर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. जैसे मैंने बोला कि हम क्वेश्चंस के लिए खुद ही प्रिपेयर होके जाएं. व्हाई शुड आई हायर यू, जैसे भी आपने पूछा. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट प्रैक्टिस के साथ, एज दे से, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट. सो this is a thing, keep practicing these mock interviews. This is the reason why we do mock interviews. Quest focuses a lot of things on हम लोग जो हमारे facilitators हैं, they do a lot of mock interviews, and this is the reason कि वो कहीं ना कहीं you start gaining those experiences, you build up that confidence, so that when you go for an actual interview, you don't hesitate to respond back. ठीक है. सो दैट इज वन थिंग. एंड इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट जो प्री इंटरव्यू में जिसको मैंने एक चीज और डाली है, जिससे आई सेड 4 पॉइंट्स हैं. द फोर्थ थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू वुड हैव क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पूछिए. बिकॉज अल्टीमेटली इंटरव्यू जैसे मैंने बताया कि दो इंसानों के बीच में ही है. सो इफ दे हैव डाउट्स, यू कुड ऑल्सो हैव डाउट्स. So you could always clear them. पहले आप इंटरव्यू दीजिए, but then always mostly what I've seen is कि during the end I used to do it, and whenever I've faced an interview, मेरे से भी ये चीज पूछते हैं, would there be anything you would like to ask? तो वो अपॉर्चुनिटी होती है कि जहां पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. बट उसके लिए भी 2-3 चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगा. वन इज दैट कभी भी वो क्वेश्चंस मत पूछिए जिसकी इंफॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाए. सपोज सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी, अब अगर उनकी वेबसाइट में दैट इन्फॉर्मेशन इज देयर इज नो पॉइंट आस्किंग दैट. एंड सिमिलरली अदर इन्फॉर्मेशन की the information that you're asking is available on the website, please don't ask that. मैं एक सिंपल सा एक रूल इस तरीके से रखता हूँ कि वो मैं पढ़ सकता हूँ वेबसाइट से. वहां पे आप पूछ सकते हैं. सपोज कीजिए if you want to ask about the flexibility, सर आपके वर्क टाइमिंग्स क्या रहते हैं. So they could tell you, that we work 24/7, but for women we have day shifts only. So those will clear your doubts. And growth prospects के बारे में भी is always interesting, because अगर आप
ये पूछें कि आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो व्हाट आर माय ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूछने से ना सिर्फ ये पता चलता है दैट यू आर सीरियसली लुकिंग फॉर अ जॉब, बट इट्स ऑल्सो शोज दैट योर लेवल ऑफ मेच्योरिटी कि यू आर सीरियसली लुकिंग फॉर अ जॉब, और आप उस लेवल पे सोच रहे हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके कहाँ तक ग्रो कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, दे वुड लुक फॉर एम्प्लॉइज जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज की द डे ऑफ इंटरव्यू। सो फाइनली जो आपकी नर्वसनेस है, सब कुछ है, उसको आपने डील करने के लिए मॉक इंटरव्यूज कर लिए, सीवी देख लिया, सब कुछ कर लिया। नाउ कम्स द एक्चुअल डे कि आज आपका इंटरव्यू है। ठीक है, सो दिस वुड बी द इंटरेस्टिंग पार्ट। एंड इसमें मैंने देखिए 5-6 चीजें रखी हैं, एंड दिस इज ऑल आउट ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज हम जब फर्स्ट टाइम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम बेसिकली ये नहीं जज कर पाते हैं कि हमसे क्या पूछा जाएगा, क्या चीजें ऑब्जर्व होंगी, क्या सवाल होंगे। सो दैट इज वाई ये जो सेशन है, इसमें हम यही चीज कर रहे हैं कि सो दैट यू गेट फेमिलराइज। तो इसीलिए जो सेकंड पार्ट मैंने कहा था कि कुछ चीजें तो वो होंगी जो हम इंटरव्यू से पहले जिनको हम डील करते हैं, एंड वी प्रिपेयर फॉर देम। द अदर पार्ट वाज those particular things that we do on the day of interview, right, and at the venue of the interview, जहां पे इंटरव्यू है वहां पे और उस पे। सो पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको 10 बजे का उन्होंने इंटरव्यू का टाइम दिया है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू रीच 15 to 20 minutes बिफोर टाइम। हम ये ना सोचें कि बिकॉज देखिए अल्टीमेटली नॉट ओनली दिल्ली, बट वी ऑल्सो हैव दैट फेज वेयर वी इन दिल्ली, हम कभी लेट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो ऑलवेज कीप दैट 15-20 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। एंड देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर बताऊं, दिल्ली में सपोज 10 बजे आपका इंटरव्यू है, एंड आप 10 बजे ही आए या 2 मिनट पहले आए, आपने रिसेप्शन में बोला मेरा 10 बजे इंटरव्यू, उन्होंने आपको बोलते हैं जाइए मैम रूम में जाइए इंटरव्यू दीजिए, तो आपको अपने आप को संभालने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, सो नेवर डू दैट। हमेशा 15 से 20 मिनट आप पहले पहुंचिए। उसका फायदा क्या होता है, आई कम टू दैट। आई एम गेटिंग सम क्वेश्चंस आल्सो, इनको आई जस्ट कवर दिस फर्स्ट टॉपिक एंड उसके बाद विल कम टू द क्वेश्चंस। एंड ठीक है, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि एक तो आप 15 से 20 मिनट पहले पहुंचिए। सो इट्स ऑलवेज गुड। आपके लिए देखिए जॉब इंपॉर्टेंट है, जहां से you'd be getting that opportunity where you'll become economically independent। तो अगर आपको ऐसा कोई मौका मिल रहा है एंड यू आर सीरियस अबाउट योर जॉब, तो आप हमेशा यू हैव टू बी पंक्चुअल। इंटरव्यू से 15-20 मिनट्स पहले पहुंचिए। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कहीं नई जगह पे जाते हैं, इफ यू गो टू अ न्यू प्लेस, वी ऑलवेज सी दैट नई जगह पे जाके सब लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, बिकॉज आप उस जगह को जानते नहीं है। ठीक है, हर ऑफिस एक सा नहीं होता है, सिमिलरली हर ऑफिस का रिसेप्शन भी एक सा नहीं होता है, लोकेशंस भी अलग होंगी। सो वन थिंग इज कि आप जब जाएंगे, आप रिसेप्शन पे गए, यू इन्फॉर्म दैट रिसेप्शन पे जो है कि मैम मेरा इंटरव्यू है, आई हैव बीन कॉल्ड एट 10। तो वो आपका सीवी लेके दे विल से कि प्लीज टेक अ सीट एंड जस्ट रिलैक्स, थोड़ा सा आप बैठिए। तो वो 10-15 मिनट पहले तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। आप जो मेट्रो से शायद पैदल चल के वहां तक गए हैं, या कोई ड्रॉप करने आपको आया, तो यू गेट दैट बिट ऑफ रिलैक्सेशन, जहां पे आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। सेकेंड थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए रिज्यूमे जो आप ले जाते हैं अपना, या उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, आई ऑलमोस्ट 60-65% ऑफ द टाइम हैव सीन कि लोग क्या करते हैं, उसको रोल कर देते हैं। बैठे बैठे मेट्रो में आ रहे हैं, या मे बी सिटिंग इन द रिसेप्शन, एंड दे स्टार्ट रोलिंग दैट सीवी। दैट इज अ टोटल नो नो। वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली चीज तो देखिए, जो आपका सीवी है, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग यू। ठीक है, बट इसमें आप क्या कर रहे हैं कि अपने सीवी में अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह, जब आपका जो सीवी है इंटरव्यू के पास, आप कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाएंगे, द सीवी goes to the receptionist and she gives it in to the person जो इंटरव्यू लेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पहले आपका सीवी इंटरव्यू को मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सीवी बहुत साफ सुथरा हो, सीवी मुड़ा हुआ ना हो, इट शुड बी प्रॉपर इन प्रॉपर शेप। और उसको आप, सबसे बेस्ट है कि फोल्डर्स आते हैं, टेक इट इन अ फोल्डर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सीवी आपका कितने आने वाले टाइम में, कमिंग फ्यूचर में यूज होता है, सो ऑलवेज गिव इट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड रोल कभी नहीं करना है।
ठीक है, दैट इज वन नो नो। एंड उसको मतलब इफ यू गोना टेक इट इन अ प्रॉपर कवर, सो उसमें गंदा होने के चांसेस भी नहीं है, रोल होने के चांसेस भी नहीं, यू विल कीप इट प्रॉपर। सो दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज नॉर्मली किसी का सीवी आ रहा है और रोल्ड अप है, सो दे वुड गेट दैट इंप्रेशन कि हाउ सीरियस यू आर फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। तो इसलिए दैट्स अ बिग नो नो। थर्ड आई वुड से इसकी, देखिए जब इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो उस टाइम पे हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? गिविंग दैट इंटरव्यू, राइट, एंड गेटिंग दैट जॉब। तो व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर इज कि जब हमारी उस टाइम पे फोकस सारा ये होना चाहिए कि हम इस जॉब को कैसे अटेन करें, हाउ डू वी गेट दैट जॉब। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब इंटरव्यू प्लेस पे हो, प्लीज पुट योर फोन्स ऑन साइलेंट और वाइब्रेशन मोड। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बिकॉज आप सपोज कीजिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे मैसेजेस बढ़ रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग अ कॉल और समथिंग, तो उससे होगा कुछ नहीं, यू वुड डेफिनेटली गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप जाएं रिसेप्शनिस्ट, मतलब रिसेप्शन में पहुंचे, अपना सीवी दें, व्हेन यू सिटिंग, दैट दोस 15 मिनट्स जो आपको मिल रहे हैं, 10 मिनट्स मिल रहे हैं, make sure you put your phone on silent mode. Make sure you either put it on silent or vibration mode, because it's not good, it does not give a good impression अगर आप कॉल ले रहे हैं, and you and avoid taking calls। आपकी उस टाइम प्रायोरिटी ये है कि मैं जॉब लूं, ठीक है, जॉब को सक्सेसफुली मैं इस जॉब के लिए सेलेक्ट हूं। तो उस टाइम पे सारी प्रायोरिटीज, दोस्त, फोन, सब कुछ बाद में हो सकता है। आधे घंटे बाद जब ऑर्गेनाइजेशन से आप निकलेंगे तो यू कुड डेफिनेटली chat for as long as you want, talk to as long as you want, but not at that point of time। ठीक है, so that was the third important point on the day of interview। Fourth thing would be dress formally। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज दे से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप अगर जीन्स और टी शर्ट्स में हैं, तो यू वुड नॉट बी टेकन कैजुअली, ठीक है, यू नॉट बी टेकन सीरियसली, सॉरी। कैजुअल ड्रेस में आप हैं, टी शर्ट में हैं, जीन्स में हैं, स्पोर्ट्स शूज पहन रखे हैं, सो वो फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत हो जाता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो इंप्रेशन जो हमारा है, गो इन नीट एंड टाइडी, keep yourself groomed। And I know our facilitators, quest facilitators, they take proper sessions on how to go for an interview, how to be well dressed, how to be well groomed। So those are the things that you really need to focus उसमें, मतलब you should look professional, formals पहनिए, professional लगिए, and totally avoid any clothes which are casual, jeans, t-shirts, and avoid these sports shoes and all that, right? So that was a third important thing। Now one important thing which I would say is that us din thoda sa have a positive attitude and confidence। You should have a confident body language। Which body language इसलिए important है कि the point you enter the room, आपकी body language ही पहले ऑब्जर्व होते हैं। आफ्टर योर सीवी, व्हेन यू एंटर द रूम, इट्स यू हु आर बीइंग ऑब्जर्व। तो इफ यू आर सिटिंग इन, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड इफ यू गॉट योर शोल्डर्स लाइक सिटिंग डल, ऐसे नीचे बैठे बैठे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इज टोटली गिविंग नेगेटिव वाइब्स। So be sit up straight, have a light smile on your face, and when you're introducing yourself, because automatically क्या है, अगर आप अपने CV, अपना प्री इंटरव्यू का सेशन आपने ढंग से अगर किया है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, अपने सीवी के बारे में आप क्लियर हैं, यू क्लियर अबाउट योर क्वालिफिकेशंस एंड ऑल दैट, तो ऑटोमेटिकली दैट वुड रिफ्लेक्ट इन योर बॉडी लैंग्वेज। एंड दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि वो बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव भी होगी, कॉन्फिडेंट भी आप होंगे, एंड दैट विल गिव यू ऑल द मोर चांसेस टू गेट सेलेक्टेड। सो इसीलिए कहते हैं कि आप जब बैठे इंटरव्यू के सामने, हैव दैट स्माइल, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि आप आर्टिफिशियल स्माइल कीजिए, स्माइल लाइटली। जब भी वो आपसे कुछ सवाल पूछें और दे आर टेलिंग यू समथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, डू नॉड इन द सेंस कि आप उनको एक तरीके से नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जब वो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दें जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, ऑलवेज लीन अ बिट फॉरवर्ड। ये इंटरव्यूज में हम ये बॉडी लैंग्वेज भी नोट करते हैं कि जब किसी चीज को लेकर आप इंटरेस्टेड होते हैं, तो यू नॉर्मली लीन फॉरवर्ड। ये ह्यूमन, हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि हम ऐसा करते हैं। सो फॉलो दीज बेसिक थिंग्स, ड्रेस वेल एंड बी ऑन टाइम। और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जैसे अगर आप सारा ये चीजें करके जाएंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू वुड बी कॉन्फिडेंट। सो जब आप सब कुछ जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी लैंग्वेज वुड बी पॉजिटिव, एंड इवन दैट पॉजिटिविटी वुड बी देयर व्हेन यू स्पीक। So that is there। And last but not the least, what I would say is that सबसे important क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम देखते हैं सीवी, मतलब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में जैसे भी सामने वालों ने बोला कि भैया ओके, सो विल गेट बैक टू यू या व्हाटएवर, तो हम लोग फटाफट इस उसमें होते हैं एजेंसी में कि भैया उठ के बाहर जाए। सो डोंट डू दैट, बिकॉज अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया है उस ऑर्गेनाइजेशन में, आप रुकना, मतलब यू वांट टू गेट अ जॉब इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां से
we don't want to rush out. So take your time कि जैसे ही आपका इंटरव्यू ओवर होता है, do take your time out to thank the interviewer. Because मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि normally out of 10 only one or two people would thank the interviewer ki, I would like to really thank you for your time that you took for the interview, and I would wait for hearing back from you. Similarly reception pe bhi you could also say a quick thank you to the female जिसने आपका CV लिया. So these are very ये छोटी चीजें हैं जो उस टाइम आपको लगता है maybe they don't hold a lot of importance, but जैसा कि मैंने कहा था कि today's topic is how to increase your chances to get hired, right? So it's all about that, increasing those chances. Suppose you were polite, the interviewer interviewed at least 8 to 10 candidates, or maybe 15, 20 candidates. बट अपार्ट फ्रॉम द वे आपने अपना इंटरव्यू कैसे दिया, और इंटरव्यू देने के बाद आपने जाते जाते उनको थैंक्स भी किया, रिसेप्शन पे भी यू वर पोलाइट एंड यू सेड अ थैंक टू हर. सो दीज आर थिंग्स दैट दे वुड कंसीडर कि देखिए हो सकता है कि दो जने फाइनलाइज हो रहे हो कि इज गॉट द इंटरव्यू हैज टू पीपल इन देयर माइंड, बट अल्टीमेटली वो अपनी तरफ उस चीज को लेने में टू गेट सेलेक्टेड, दीज आर स्मॉल जेस्चर्स दैट यू कुड डू विच वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट. ठीक है. सो दीज वर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, एंड इसको जैसे मैंने कहा, इफ यू आर फॉलोइंग दीज थिंग्स, this would automatically increase your chances of being selected at an interview. कभी भी देखिए घबराइए मत, because ultimately आप अपना एक इंटरव्यू, you're giving an interview to an individual, वो इंसान है. so obviously बात है, आप एक नई जगह में जाने, इसलिए मैंने कहा आप थोड़ा टाइम से पहुंचिए, so you will have that time which you could spend and get relaxed and be confident again. So confidence रहिए, you build that confident. mock interviews करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा. हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट, हैव दैट पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक.